Exercise 6.3. Here we have to find the solution of system of linear inequations into two variables. So for the system of linear inequations, we are given more than one linear inequalities. So system of linear inequalities is given. So let's start with the question number one. So here for question number one, we are given x greater than or equal to 3 and y greater than or equal to 2. X greater than or equal to 3, y greater than or equal to 2. Here, two linear inequalities are there. So what is the solution of this system of linear inequality? The solution of system of this linear inequality is nothing but the solution of this between these inequalities x greater than or equal to 3 and y greater than or equal to 2. So we have to represent the solution of these both inequalities in the same graph. So this is x greater than or equal to 3, which is nothing but the x equal to 3 line, and this one is y equal to 2 line. So here graph x axis, y axis, this is the origin point 1, 2, 3, minus 1, minus 2, this one is 1, 2, 3, this is minus 1, minus 2. Done? So here graph x equal to 3. X equal to 3 is the line perpendicular to x axis at 3. So line perpendicular to x axis at 3. This is the equation of x equal to 3. So graph of x equal to 3 is there. Y equal to 2. Y equal to 2 is the equation of line perpendicular to y axis at 2. So this line y equal to 2. Done? Now solution region. So here x greater than or equal to 3 is there. So you have to check for this origin 0 0. So for x greater than or equal to 0, put x equal to 0. So 0 greater than or equal to 3. Whether this is true or false statement. This is false statement. So you have to consider the half region, half plane which is away from this origin. So for this x equal to 3, you have to consider this region that is away from the origin. डन. एक ये साइड होगा, एक ये साइड होगा. ये फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिन से अवे जाना है क्योंकि ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, तो ये साइड पर आएगा सॉल्यूशन. नाउ सेकंड वन इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए पुट कोऑर्डिनेट्स 0 0. इट्स अ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दिस इज अगेन फॉल्स. So solution of this inequality y greater than or equal to 2 is region away from the origin. तो इसके लिए away from the origin ये वाला आएगा. तो देखो ये लाइन के लिए ये पूरा रीजन आ रहा है और ये लाइन के लिए ये पूरा रीजन आ रहा है. सो वी हैव टू कंसीडर द सॉल्यूशन व्हिच इज कॉमन बिटवीन दिस टू लाइन. तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन और इसके राइटवर्ड डायरेक्शन. सो वी आर गेटिंग दिस रीजन एज ए कॉमन रीजन. डन. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट system of linear inequalities. X greater than or equal to 3 and y greater than or equal to 2. Clear? ये समझ में आ गया? स्टूडेंट्स डायरेक्शन देखो, ये x इक्वल टू 3 लाइन है, इसके सॉल्यूशन पे ओरिजिन डालो तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो रही है, तो ये ओरिजिन से अवे होगा, ओरिजिन से और राइट डायरेक्शन पर होगा. और इसके लिए भी ये फोर्स इनइक्वालिटी आ रही है, तो इसका जो हाफ प्लेन होगा वो अपर डायरेक्शन होगा. तो ये दोनों का कॉमन, इसका लेफ्ट डायरेक्शन सॉरी इसका राइट डायरेक्शन और इसका अपर डायरेक्शन, तो दोनों का कॉमन रीजन ये आएगा, है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा. डन. क्लियर? ओके चलो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2. Here, for the system of linear inequality, total 3 inequalities are there. 3x plus 2y less than or equal to 12. सिर्फ एक इनइक्वालिटी ले लो तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 6.2 और तीनों का कॉमन एरिया लो, तो दैट इज आवर एक्सरसाइज नंबर 6.3.
डन। तो देखो इसकी लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, है ना। स्लैक इनइक्वालिटीज आर देयर, तो कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम सॉलिड लाइन यूज करेंगे, है ना। स्ट्रिक इनइक्वालिटी होगी तो हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे। So here equation is 3x plus 2y equal to 12. Here x equal to 1 and for this y equal to 2. x equal to 1 y equal to 2 डायरेक्ट होगी, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। So coordinate box for this line 3x plus 2y equal to 12 is, यहाँ पर ड्रॉ कर दे। So different values of x and y. Put x equal to 0. So we are getting y equal to 6. Put y equal to 0. We are getting x equal to 4. ये लाइन और ये लाइन को ड्रॉ करना है, सबको आता है ड्रॉ करना। So we will draw the graph. This is our x-axis, this is y-axis. This is our origin. 1, 2, 3, 4, 5. This one 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here -1, -2, -3, -1, -2. Done. Now first point is x0, y6. x0, y6. 0, 6 point. Second point is 4, 0, x4, y0. This point. So first line is the line passing through these 2 points. Done. This is first line, ये वाली line. Second line is x equal to 1. X equal to 1 is the line perpendicular to x axis at x equal to 1. Perpendicular to x axis at x equal to 1. ये line होगी. This is our second line, x equal to 1. Second line is y equal to 2. Line perpendicular to y axis at y equal to 2. Perpendicular to y axis, तो horizontal line होगी, ये सी line at y equal to 2. Done. 3 lines are there. Now you have to find the solution region. So for solution region, first consider this line. Consider origin, coordinates of origin. ये origin इसके solution पर है कि नहीं है ना। ये line draw की ये, तो इसके हम upper plane मिलेगा, एक lower plane मिलेगा। यहाँ पर भी एक ये वाला rightward plane मिलेगा, half plane, यहाँ पर भी एक half plane मिलेगा, एक ऊपर half plane मिलेगा, एक नीचे half plane मिलेगा। तो इसका common region find करना है। So for this one, 3x plus 2y equal to 12. Consider the coordinates of 0, 0. So x equal to 0, y equal to 0. So for 0, 0, this inequality will be 0 less than or equal to 12. So this is true. This equality is true for origin. तो इसका जो solution part है कौन सा है, half plane towards the origin. इसका कौन सा part है, towards the origin, है ना, half plane towards the origin. तो ये line हमारी है 3x plus 2y less than equal to 12. तो इसका solution towards the origin है ये वाला। Done. Now second line, x greater than equal to 0. तो इसका ओरिजिन चेक करें तो ये होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एल, तो ये हो गया फॉल्स। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया। तो ये लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ए एक्स इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन रीजन होगा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ओरिजिन से अवे जाना है ना, राइट डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं जाना है। ओरिजिन इसके इंक्लूड नहीं होता है तो ये डायरेक्शन में जाना है। ये जो लाइन है उसके हमें नीचे आना है, ये वाली लाइन से हमें राइट डायरेक्शन में जाना है। और थर्ड लाइन कौन सी है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके लिए चेक करें ओरिजिन, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगेन ये फॉल्स हो गया। तो इसका सॉल्यूशन रीजन पे क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो इसका अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो देखो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये लाइन का नीचे आ रहा है, ये लाइन का ऊपर ऐसे आ रहा है ना, ये लाइन का राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके ये डायरेक्शन में, इसके नीचे और इसके ऊपर कौन सा रीजन कॉमन आया, है ना, इसके नीचे तो ये वाला रीजन, इसके राइट डायरेक्शन में ये वाला रीजन, और इसके ऊपर डायरेक्शन में ये वाला रीजन। So this is common region. So solution of this system of linear inequality is this area. इस एरिया के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट ले लो तो वो पॉइंट है वो तीनों इनइक्वालिटी को प्रूव करेगा, है ना, ट्रू है वो प्रूव करेगा। डन। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। क्लियर। वेरी गुड। थर्ड,
थर्ड वन इज 2x plus y. 2x plus y greater than or equal to 6. 3x plus 4y less than or equal to 12. 3x plus 4y less than or equal to 12. इसको सॉल्व करना है तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी विल कंसीडर दी इक्वालिटी. लाइन कंसीडर करें इसको. सो 2x plus y equal to 6 and this will be 3x plus 4y equal to 12. So coordinate box है ना. Slack inequality is there, so we will draw the solid line for this both the inequalities. तो इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स यहाँ पर हो जाएगा. इसका यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. x y x y. Now for this, if you are taking x equal to 0, put x equal to 0, so we are getting y equal to 6. If you are getting x equal to y equal to 0, we are getting x equal to 3. Here put x equal to 0, so y is 3, and if you take y 0, then x 4. Done. So now we can draw the graph for these both lines. This is our x axis, this is our y axis, this is our origin. 0 1 2 3 4 5, minus 1 minus 2 minus 3. This is 1 2 3 4 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. डन. अभी पॉइंट लोकेट करो. ये पॉइंट 0 6 x 0 y 6 x 0 y 6 यहाँ पर होगा कुछ 0 6. दूसरा पॉइंट है x 3 y 0 3 0 3 0 यहाँ पर होगा. डन. सो वी आर गेटिंग वन लाइन ओवर हियर. ये सब ग्राफ ड्रॉ करने तो आते हैं ना सबको. ये 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था और अभी 11th स्टैंडर्ड में भी अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है. सो 2x plus y greater than or equal to 6. डन. दूसरी लाइन कौन सी होगी? x 0 y 3. x 0 y 3 कहीं पर यहाँ पर होगा 0 3. दूसरा पॉइंट x 4 y 0, तो ये 4 0 यहीं पर होगा कुछ, है ना. तो ये लाइन कुछ ऐसे मिलेगी. अरे यार स्केल लेके आए हो फिर भी यूज नहीं कर रहा हूँ. जैसे मिलेगी ये अच्छा हुआ, है ना. दिस इज दी 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू 12. तो देखो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा. तो इसके लिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के चेक करें, है ना. ऐसा नहीं है कि हमें ओरिजिन ही चेक करना है. आप कोई भी पॉइंट ले लो. ये जो लाइन है सपोज ये वाली लाइन, तो इसके आप इसके जो नीचे वाला हाफ प्लेन है या फिर ऊपर वाला हाफ प्लेन, आप कोई भी पॉइंट उसमें रख के आप वेरीफाई कर सकते हो. तो यहाँ पर हम ओरिजिन के लिए इजी रहेगा तो वही हम यूज कर रहे हैं. तो अभी ओरिजिन पर देखते हैं 0 0. तो ये क्या होगा ये लाइन पर 2 into 0 plus y 2 into 0 plus 0. So 0 greater than or equal to 6. बोलो, है ना. ये फॉल्स है, ये कभी भी ट्रू नहीं होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो फॉल्स आ गया. कौन सी लाइन के लिए? 2x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये वाली लाइन के लिए फॉल्स आ गया. तो फॉल्स आ गया तो इसका रीजन क्या होगा? अवे फ्रॉम दी ओरिजिन. तो इसका जो ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है ना, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है. डन. ये वाली लाइन है उसके ऊपर का. विजुअलाइज हो रहा है ये डायग्राम. और दूसरी जो लाइन है 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू 12, तो उसके लिए हम ओरिजिन रखेंगे तो ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू 12. तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 12 ये तो ट्रू आ गया. तो जो दूसरी लाइन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन. अगर ये लाइन ड्रॉ करे तो ऊपर एक हाफ प्लेन मिलेगा, एक नीचे हाफ प्लेन मिलेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? जो हाफ प्लेन में ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि ये इक्वालिटी ट्रू आ रही है. तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ये नीचे डायरेक्शन में, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है वो. तो दोनों का सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? दोनों का कॉमन. तो बताओ दोनों का कॉमन कहां पर हो रहा है ना. यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है.
इसका नीचे और इसके ये पूरा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्यूशन रीजन उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे और एक इनइक्वालिटी के लिए, तो इतना आएगा कॉमन रीजन। Then this is the solution region for this given system of linear inequality। हालांकि ये भी आ सकता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन भी कॉमन है, देखो इसके नीचे और इसके ऊपर, लेकिन हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? ये समझ में आ गया? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ क्वेश्चन, हाँ है ना, सेम मेथड से जाना है, लेकिन कुछ काम नहीं है हमारे पास अभी, तो वन बाय वन सभी करेंगे। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। डन। ट्राई करते हैं ये। तो इसकी जो लाइन होगी वो होगी x प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस वन इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट बॉक्स ना, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास सर टीचर थे, वो 4 पॉइंट डिराइव करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको 11th-12th में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए। सो एक्स वाई, if x 0 y 4, if y 0 x 4, here if x 0 then y 0, x 0 y 0, and if y 0 तो भी x 0 हो गया, तो कुछ अलग लेना पड़ेगा है ना। x 0 के लिए x 1 ले लो, चलो नहीं y है ना, y 2 ले लो, चलो y 2, तो ये 2 इधर गया, x 1 हो गया है ना, y 2 के लिए x 1, 0 0 and 1 2। क्लियर? देखते जाना, अभी ये मिस्टेक होगी इसमें कुछ। सो 2 लाइन्स आर देयर, ड्रॉ द ग्राफ। स्केल लेके आए हो, लेकिन स्केल यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा होता है, आपको स्केल से करना है। सो हियर एक्स वाई ओरिजिन 0, दिस इज 1 2 3 4, -1 -2 -3, वाई 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। पॉइंट लोकेट करो। फर्स्ट पॉइंट x0 y4, ये होगा 0 4 0 4, और ये भगवान 4 x 4 y0, x 4 y0 है ना, ये लाइन मिलेगी। इसको स्केल से करते हैं, क्योंकि स्केल लेके आए हैं तो यूज करते हैं, अच्छी लाइन होती है। डन। ये लाइन हो गई। कौन सी लाइन? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। दूसरी लाइन कौन सी है? एक ओरिजिन से पास होती है, यहाँ से है ना, ओरिजिन से पास होगी तो क्या करेंगे। और दूसरा पॉइंट 1 2 x 1 y 2, यहीं पर होगा कुछ, तो ऐसे होगी पास। सो हियर दिस वन इज 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है। डन। अभी तक हम ओरिजिन चेक कर रहे थे, और ओरिजिन जो यहाँ पर लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन के लिए क्या करेंगे उसको बाद में सोचते हैं। चलो, फर्स्ट लाइन कंसिडर ओरिजिन 0 0 for 0 0, inequality for the first line is 0 plus 0 0 less than equal to 4, ये ट्रू हो गया। So for the first line the half plane solution of half plane will be towards the origin। तो ये फर्स्ट प्लेन है, सॉरी ये फर्स्ट लाइन है, उसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, नीचे आएगा। लेकिन ये सेकंड लाइन के लिए जो ओरिजिन चेक करेंगे, तो ओरिजिन तो लाइन के ऊपर ही है ना, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए अभी हमें ओरिजिन नहीं चेक करना है ना। ये लाइन के जो नीचे के वाला एक पॉइंट है, उसमें से ये रीजन में से कोई एक पॉइंट ले लो, या फिर यहाँ से एक पॉइंट ले लो। तो यहाँ पर सपोज एक पॉइंट में ले लो, यहाँ पर ये रीजन में,
इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 1, क्या होंगे 2 1। तो अभी इसको चेक कर जाएंगे 2 1 इसके ये सॉल्यूशन में है या फिर नहीं है। अगर 2 1 इक्वेशन को सोल्व कर जाएगा तो इसका सॉल्यूशन रीजन ये नीचे वाला होगा, तो अगर सोल्व नहीं करेगा तो ये ऊपर वाला होगा। डन। तो आपको यहाँ से आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो मैंने लिया 2 1। इज देयर क्लियर? अगर कोई भी लाइन सेंटर में से ओरिजिन से पास हो रही है तो वहां पर आपको ओरिजिन नहीं लेना है, उसके अलावा आपको कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लेना है। क्लियर? और वो पॉइंट आप कौन से रीजन में से ले रहे हो वो आपको विजुअलाइज होना चाहिए। मैं 2 1 पॉइंट ये नीचे वाले रीजन में से ले रहा हूँ, तो देखो 2 1 यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या होगा, और ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जल्दबाजी में, है ना। ये देखो स्ट्रिक इनइक्वालिटी है, तो स्ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, ये डॉटेड लाइन आएगी, तो इसको मैं अभी चेंज करता हूँ, है ना। डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, ये आपको जल्दबाजी में याद नहीं रखना है ये। तो ये डॉटेड लाइन आएगी, ये डॉटेड लाइन है, दिख रहा है? बोलेंगे सर ने रॉन्ग ड्रॉ किया है, ये डॉटेड लाइन है ना, इसलिए आप जब ड्रॉ कर रहे होंगे आप पेंसिल से करेंगे, तो ये पेंसिल वाली लाइन आप इरेज कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये डॉटेड लाइन दिख रही है अभी, तो ये डॉटेड लाइन, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं 2 1 पुट कर रहा हूँ, तो देखो 2x, जो 2 2 जा 4 माइनस 1, तो इट्स 3 ग्रेटर देन 0। तो 3 ग्रेटर देन 0 होता है, यस ट्रू। तो ये ट्रू, तो ये कौन से डायरेक्शन में आएगी, जो पॉइंट लिया ना वो डायरेक्शन में। इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ये नीचे वाले रीजन में, है ना, ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका रीजन क्या आएगा, देखो ये हमारे में गलती की है मैंने इक्वेशन लेने में। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, हाँ टेक्स्ट बुक में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है ना, मैंने लेस देन ले लिया। इसका सॉल्यूशन अभी क्या आएगा, ये वाला रीजन। डन। अगर टेक्स्ट बुक में दिया है वो क्वेश्चन लेस देन और इक्वल टू की जगह पर क्या दिया है, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कर देंगे तो इसमें क्या चेंज आएगा बोलो, ये ग्रेटर देन कर दे तो क्या आएगा, तो ग्रेटर देन के लिए ये इनइक्वालिटी फॉल्स आ जाएगी, जीरो लेस देन, हाँ फॉल्स। तो इसका रीजन क्या आएगा, इसके ऊपर वाला आएगा। डन। इसके ऊपर वाला, और इसका ग्रेटर देन, तो इसका ऊपर वाला। डन। तो ये वाला रीजन आएगा सॉल्यूशन। डन। तो ये आप क्वेश्चन चेंज करके दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ फॉर फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छी तरह से कॉपी करो। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन, ये है ना, 2x minus y greater than 1. Second one is x less than 2y. X less than 2y less than minus 1. तो देखो इसमें क्या होगा, Here equation of line is 2x minus 1 greater than 1. देखो स्ट्रिक इनइक्वालिटी है तो दोनों लाइन हमारी डॉटेड ही आएगी, ठीक है। सो हियर इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x minus 1 equal to 1. 2x minus y equal to 1, and this one is x minus 2y equal to minus 1. Coordinate box, एक्स वाई, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक्स वाई। सपोज इफ यू आर टेकिंग एक्स इक्वल टू 0, एक्स 0, देन वाई इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पर आप वाई इक्वल टू 1 ले लो, 1, वाई इक्वल टू 1, सो ये माइनस 1 सामने जाएगा तो 2, और 2/2 तो ये 1, है ना, 0 0 लेके फ्रैक्शन में आंसर आएगा। यहाँ पर इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 0 तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, x इक्वल टू 1 ले लो, x इक्वल टू 1। इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 1
तो ये 1 सामने जाएगा तो -1, -2 से नीचे जाएगा तो 1, तो ये 1 1, डन, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। और इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, so put y इक्वल टू 0, we are getting x इक्वल टू -1। वेरीफाई करो सही किया कि रॉन्ग किया। सही है, चलो, है ना, गलती करते हैं पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3। लाइन ड्रॉ करें अभी इसके लिए x0 y -1, x0 y -1, ये पॉइंट x0 y -1, और दूसरा पॉइंट x1 y1, ये वाला होगा x1 y1। तो इसकी जो लाइन होगी ऐसे कुछ होगी, है ना, 2x - y ग्रेटर देन 1। इसका सॉल्यूशन रीजन भी साथ में देख लो, है ना, उसके बाद सेकंड लाइन पर जाओ। तो इसके लिए यहाँ पर आते हैं 0 0 ओरिजिन चेक करते हैं ना, 0 0, तो 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 ग्रेटर देन 1, है ना, 0 2 इंटू 0 माइनस y, तो 2 इंटू 0 -0, सो सब 0, 0 ग्रेटर देन 1, तो ये फॉल्स आ गया, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फॉल्स। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये ओरिजिन से अवे होगा। तो इसका एक हाफ प्लेन ऊपर है और दूसरा हाफ प्लेन नीचे है, इसका सॉल्यूशन आएगा नीचे वाला हाफ प्लेन, है ना, नीचे वाला, डन, ये लाइन के नीचे वाला। फिर से मैंने ये सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी, ये आएगी आपकी डॉटेड लाइन, है ना, ये आपको भूलना नहीं है। अगर एग्जाम में आपने ये सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी ना, 0 मार्क्स आएंगे। ये डॉटेड लाइन, डन। दूसरी लाइन अभी चेक करते हैं, 1 1, तो ये पॉइंट तो 1 1 है यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट है x -1, x -1 y 0, x -1 y 0, यहाँ से यहाँ कैसे होगा, ऐसे लाइन है ये, डन। ये हमारी लाइन हो गई x -2y लेस देन -1। तो इसके लिए भी ओरिजिन चेक करते हैं, तो 0, है ना, इक्वेशन ऐसे x -2y लेस देन -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 पुट करो, तो 0 लेस देन -1 आया। देखो क्या होगा, ट्रू के फॉल्स, फॉल्स आ गया ना, क्योंकि 0 लेस देन -1 नहीं होता है, तो फॉल्स। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, दो पार्ट है, एक ओरिजिन से अपर डायरेक्शन में, एक ओरिजिन के टूवर्ड्स है, तो ओरिजिन से अपर डायरेक्शन वाला आएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन ये अपर डायरेक्शन में आएगा। तो दो लाइन है, ये लाइन फिर से मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी, ये डॉटेड लाइन, है ना, ये डॉटेड लाइन। तो इसका सॉल्यूशन रीजन अपर डायरेक्शन में और इसका सॉल्यूशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लाइन भी ऐसे इन्फिनिट ही जाएगी, हाँ, ऐसे इन्फिनिट। तो बोलो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन। क्लियर, देखो ये उससे ऊपर डायरेक्शन और इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों का कॉमन रीजन है ये। So this will be the solution region for this question number 5. Clear students? फीलिंग आ रहा है कि आपको ये लीनियर इनइक्वालिटी सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा कुछ? तो चलो क्वेश्चन नंबर 6। हियर टू लाइन्स आर देयर, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, और एक है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो टू लाइन्स आर देयर, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है, तो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी, है ना, डॉटेड लाइन में भूल जाते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेट बॉक्स, ये भी आपको पेंसिल स्केल सबका यूज करके अच्छी तरह से ड्रॉ करना है।
So xy, take x equal to 0, then y6, y equal to 0, x6, x equal to 0, y4, y equal to 0, x4. Done. Diagram. Origin point 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3 कहीं पर भी नहीं आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5, -6 जिसकी जरूरत नहीं है. देखो फर्स्ट पॉइंट 0, 6, x0, y6, ये रहा 0, 6 पॉइंट 0, 6 पॉइंट 6, 0, ये हमारा 6, 0. डन. ये लाइन होगी स्केल से, क्योंकि स्केल लेके आए हो तो स्केल यूज करना है. डन. दिस इज आवर फर्स्ट लाइन. इसका सॉल्यूशन भी देख ले साथ में. तो देखो ये x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन, ये ओरिजिन ले ले तो ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू 6. ये ट्रू हो गया. ट्रू भाई, ये ट्रू है. 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है. इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ये ओरिजिन के टूवर्ड्स, है ना. इसका सॉल्यूशन होगा ओरिजिन के टूवर्ड्स. फर्स्ट लाइन. सेकंड लाइन x0 y4, है ना. x0 y4, x4 y0. फोर जीरो. तो ये लाइन ड्रॉ करें. तो ये लाइन आप ग्राफ से अच्छी तरह से करेंगे तो ऐसे पैरेलल लाइन आएगी, है ना. दो पैरेलल लाइंस आर देयर, टू पैरेलल लाइंस. तो इसका सॉल्यूशन रीजन देखो कौन सा होगा. 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ये तो फॉल्स आ गया, ये तो फॉल्स है. तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा. ओरिजिन से अवे. ये ऊपर वाली लाइन का नीचे है क्योंकि ये ट्रू है, नीचे वाली लाइन का ऊपर है क्योंकि ये फॉल्स है. तो इसका सॉल्यूशन रीजन ऊपर आएगा. तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है. ये वाला. दो लाइन पैरेलल है और पैरेलल के बीच में जो ये जो स्पेस है ना, ये उसका सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना है आपको. मैंने पूरा कर दिया. So this is the solution region for this question number 6. Understood? Now question number 7. सेवंथ क्वेश्चन. देखो इसमें क्या होगा. 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10. है ना. इसको करते हैं फटाफट. सो दिस विल बी 2x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 10. कोऑर्डिनेट बॉक्स. x y बोलो. x0 ले ले. x0 देन y8 y0 देन x4. यहाँ पर x0 y5 y0 y0 ले लो. चलो y0 x10. ओहो 10 तक करना पड़ेगा. ग्राफ सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये स्पेस ऐसे करते हैं. x axis y axis, this is the origin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सबको पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. -1 -2 -1 -2, है ना. मेरा अजम्पशन राइट है कि रॉन्ग है. x0 y8 मैंने अज्यूम किया है कि सबको ग्राफ ड्रॉ करना आता है. सो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. x0 y4. नाउ x4 y0.
ये लाइन, दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 लाइन. दूसरी लाइन x0 y5 x0 y5 x10 y0, सो 10 0, इसका ये होगा. डन. दिस इज अवर x प्लस 2y इक्वल टू 10 लाइन. बोलो अभी इसके अंदर रीजन चेक करें. सो फॉर दैट विल कंसिडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ओरिजिन 0 0. तो फर्स्ट के लिए चेक करें तो 0 0 पुट करो. 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो फॉल्स आएगा, फॉल्स. और दूसरी लाइन के लिए भी 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी फॉल्स आएगा. दोनों लाइन के लिए फॉल्स आ रहा है, तो दोनों लाइन के लिए फॉल्स आ रहा है. दैट मीन्स सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन. इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला, और इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला. तो दोनों के बीच में कॉमन रीजन कौन सा आएगा? दिस वन. यस और नो? इसके ऊपर और इसके ऊपर. द कॉमन रीजन फॉर दिस inequality given in question number 7.